ہمیشہ کی طرح آج کے دن کا آغاز بھی ہم کریں گے اچھی بات سے۔ تو ناظرین، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ کوشش اور مستقل کوشش۔ اگر آپ کسی کام میں محنت کر رہے ہیں لیکن اس میں مستقل مزاجی اور یکسوئی نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی پودے کو تناور درخت بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسے تپتی دھوپ، بارش اور گرد آلود ہوائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر وہ پھل دینے کے قابل بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کو نہیں چھوڑنا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کنسسٹنٹ رہیں گے تو آپ جس بھی چیز میں ایفرٹس کریں اس کا آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ ہی ملے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ اور شفق، کہتے ہیں نا کہ پانی کا ایک قطرہ مسلسل گرتا رہے تو وہ سخت سے سخت چٹان کو بھی چیر کر رکھ دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ تسلسل نہ ٹوٹے۔ اور کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی فن میں ماہر بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کام کو روزانہ کریں، اس میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے، کوئی بریک نہیں آنا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کام میں بالکل ماہر بن جائیں گے۔ بالکل ایسے نا، جب آپ کنسسٹنٹ رہیں گے، آپ روز ایک چیز کریں گے تو آبویسلی آپ اس میں بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے۔ لیکن اب سوال یہ کہ مستقل مزاجی اپنائیں کیسے، کیونکہ انسان کی نیچر انسان کسی سے زیادہ دیر نہ رہ نہیں پاتا ہے۔ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اہداف طے کر لیں، اور اگر کوئی بڑا کام دیا ہے تو اسے بھی چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تاکہ آپ کو انہیں مکمل کرنا آسان ہو اور بہت زیادہ مشکل نہ لگے آپ کو۔ یہ ایک بہت ہی اچھی سجیشن ہے، اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ روٹین بنائیں، مطلب یعنی کہ اپنے کاموں کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کر لیں، اس کی پابندی کریں اور پھر بہانے بنانے سے گریز کریں۔ بہانے نہیں بنانے چاہیے، کنسسٹنسی پہ آپ قائم رہیں۔ وقتی سستی اور پھر جو مشکلات کو اپنے راستے سے رکاوٹ نہ بننے دیں، بالکل بھی اپنا احتساب کریں۔ اس کے علاوہ اپنی پیش رفت پر نظر رکھیں اور ناکامی پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کامیابی پر بھرپور جشن منائیں۔ مایوسی کا دامن جو ہے نا وہ نہیں پکڑنا چاہیے آپ کو کبھی بھی، اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کے اندر آئندہ اس کام کو کرنے کی جو تحریک ہے وہ بھی پیدا ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی، آپ نے بالکل کسی قسم کے کوئی بہانے نہیں بنانے، کوئی لیتھارجک نہیں ہونا، بلکہ کنسسٹنٹ رہ کر اپنے کام کرنے، اور پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور آپ کے کام اچھے سے اچھے ہوتے جائیں گے۔ تو یہ تو تھی آج کی اچھی بات۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس پر امپلیمنٹیشن کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور باتیں آپ سے کر لیتے ہیں، کچھ سنجیدہ نوعیت کی خبریں آپ کو دیتے ہیں، ٹاپ سٹوریز پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلی بڑی خبر ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا کہ اگر ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کریں گے جو مجھے کرنا ہے۔ لیکن آپ نے پریشان بالکل نہیں ہونا، کیونکہ ٹرمپ کی اس قسم کے جو بیانات ہیں نا وہ ہمیں ان کا یوز ٹو ہو جانا چاہیے، اور بیسکلی اس قسم کے بیانات ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ان کی یہ روایت بن گئی ہے کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہی رہتے ہیں۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں 12 ارب ڈالر کے منجمد اثاثوں کے اجرا کے لیے دستخط کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج ایک روزہ دورے پر اسلام آباد آئیں گے اور شکریہ کریں گے بیسکلی وہ پاکستان کا۔ ایرانی صدر پاکستانی قیادت سے ملاقات میں ثالثی پر شکریہ ادا کریں گے، تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور ایران بھی، امریکہ بھی، ایون پوری دنیا جو ہے اس سلسلے میں پاکستان کی معترف ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دوسری جانب یورپ میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی ہے، کئی شہروں میں گرمی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سی بات ہے۔ یہ صرف مجھے لگتا ہے یورپ میں نہیں پڑی، پاکستان میں بھی ہے، ہم خود گرمی سے بہت تنگ ہیں۔ تو بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں فیفا کی۔ فیفا ورلڈ کپ میں سپر اسٹار میسی کے 2 گول تاریخ میں سب سے زیادہ گولز کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ کوئی حیران کن چیز نہیں ہے، کیونکہ میسی جو ہے وہ گوٹ ہیں، گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے، اور ہم ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو میسی فین ہیں وہ بہت خوش ہوں گے میرا خیال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور لوگ بلکہ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے جتنے ان کے فینز ہیں نا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنی پہلی ٹاپ سٹوری پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ایران معاہدے پر قائم نہ رہا تو وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خبردار کر دیا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہ بیان دیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مذاکرات کر رہے ہیں، دیکھیں گے معاملات کیسے آگے چلتی ہیں، جب تک تہران ہمارا احترام کرتا رہے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آبن ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایران کی فوجی صلاحیت تباہ کر دی ہے۔ یعنی وہی بات ہے کہ ایک تو فیس سیونگ کے لیے وہ اس قسم کے بیان دیتے ہیں کہ جی ہم جیتے ہیں وہ ہار گئے ہیں، دوسرا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے وہ اس قسم کے بیانات، اور ہم جیسا کہ پہلے بھی بات کر رہے تھے، کئی بار کہہ چکے ہیں، ان کی روایت بن چکی ہے، مجھے لگتا ہے ان کو عادت ہو گئی ہے بار بار دھمکیاں دینے کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ مشکل میں ہے اور منجمد اثاثے اجناس خریدنے کے لیے جاری کیے جائیں گے، جبکہ اجناس صرف ہمارے کسانوں سے ہی خریدی جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت ہی عجیب سا ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے منجمد اثاثے تو ریلیز کر ہی دیے ہیں، لیکن جو آپ کی خریداری ہے وہ صرف اور صرف ہم سے ہی کی جائے گی۔
नाज़रीन, ये गुफ्तगू तो आपने सुनी, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर ने अमेरिकी सदर के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका से ज़रई इजनास खरीदने का पाबंद नहीं है हम, और मौजूदा माहिदों में अमेरिकी ज़रई इनपुट्स की खरीदारी लाजमी नहीं होगी। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है, एक तरह से तरदीद की गई है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज़रई खरीदारी की कोई लाजमी शर्त भी मौजूद नहीं है। ये बहुत ही अहम जो बयान है वो सामने आया है, एक तरह से ट्रंप के बयान के मुनाफी है ये, अगर कहा जाए। ऐसे उन्होंने क्लैरिटी दे दी, उन्होंने कहा कि, और ये चीज़ हमने भी देखी कि जब वो MOU हुआ, उसके अलावा जो एलामिया सामने आया उस दिन की मुलाकात का, और एक नशिस्त हुई, टेक्निकल नेगोशिएशन का पहला राउंड था, उसमें इस किस्म की कोई भी बात जो है ना वो नहीं हुई थी और हम तक भी वो नहीं आई थी डेफिनेटली। हालांकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की चीज़ों को रिपोर्ट करना भी बड़ा हसास होता है, डिस्क्रीट मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीज़ कोई आई नहीं थी। लेकिन ट्रंप की जानिब से अचानक से एक ऐसा बयान आया जो कि सबके लिए हैरानकुन था। बहरहाल ईरान की जानिब से उसकी तरदीद की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि मुंजमद फंड्स का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी अशिया तक महदूद नहीं है। गवर्नर ने कहा कि ईरान को गैर पाबंदी शुदा अशिया की खरीदारी की इजाज़त होगी, और मेरा ख्याल है कि होता भी ऐसे ही है। जब आपने उनके एसेट्स रिलीज़ किए हैं और उनको पैसे मिले हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको बेहतर पता है कि उन्होंने कहाँ पर उनको खर्च करना, किस तरह से, किस फ्रेमवर्क के तहत उन्होंने इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ट्रंप से हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रंप के लिए एक टर्म यूज़ होती है टैको की, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी वो कभी भी कुछ भी कह देते हैं, कभी भी यू टर्न ले लेते हैं, और कभी भी अपनी जो है ना वो फतह डिक्लेयर कर देते हैं, और कभी भी किसी को कह देते हैं यार ये हार गया, ये हो गया। तो ये कोई बईद नहीं है इसमें, मेरा ख्याल है परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं। इस किस्म की बयानात का सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहता रहेगा। बहरहाल दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई, और स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का बड़ा दावा सामने आया। बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमान पहुंचने पर वालेहाना खैर मकदम किया गया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों ममालिक के दरमियान आबने हुर्मुज़ पर तामीरी बातचीत भी हुई है। ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा बैनुल-अक़वामी कानून और टोल के बगैर महफूज बहरी गुजरगाह पर इत्तफाक भी किया गया है। इससे मेरे ख्याल से बाकी दुनिया बहुत ज़्यादा खुश होगी कि आबने हुर्मुज़ पर कोई टोल नहीं लगेगा। इसके अलावा बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ पर मसाइल के हल के लिए हॉटलाइन और राब्ता मरकज़ कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि इस इक़दाम से बहरी गुजरगाह में ट्रैफिक के बहाव और जहाज रानी के हजम में बेहतरी आएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है बेसिकली इकोनॉमी और ट्रेड के लिए भी, कि वहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। हॉटलाइन कायम की जाएगी, इससे आमदोरफ्त में कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा, बेहतर तरीके से ट्रेड किया जा सकेगा, ऑयल की तरसील खास तौर पर बेहतर तरीके से की जा सकेगी। इसके अलावा जो हमारी मार्केट्स हैं इससे फ्लरिश करेंगी, और इन दी एंड यहाँ पे आवाम तक भी इसका जितना भी फ़ायदा है वो ज़रूर पहुँचेगा, सिर्फ और सिर्फ आबने हुर्मुज़ के टोल फ्री होने से। तो जी ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा इस्लामाबाद MOU के तहत पहला आला सतह इजलास कामयाबी से ख़त्म हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी और ईरानी क़यादत को तामीरी रवाबित के लिए खराज तहसीन। उन्होंने कहा कि तारीखी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि मेज़बानी और सहूलतकारी पर स्विस हुकूमत को भी खूब सराहते हैं। ऐसा ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। फील्ड मार्शल की लगन, अज़्म और साबित कदमी वाकई काबिल सत्ताइश है। उनकी कोशिशों के बगैर ये पेशरफ्त मुमकिन ना थी। पाकिस्तान पुरअमन और देरपा हल के लिए अपना मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तारीफ सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से नहीं है, बल्कि अगर इसको यूँ कहा जाए कि ये पूरी पाकिस्तानी कौम के भी यही जज्बात हैं, तो ये गलत नहीं होगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो है ना वो मोतरफ है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने कामयाबी से, किस खुशउस्लूबी से, किस खूबसूरती से, कितना ऑब्जेक्टिव रोल प्ले करते हुए, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हुए इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और तारीख में इसे सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि जब जब इस्लामाबाद मेमोरेंडम की बात होगी तब इसको कैंप डेविड और ओस्लो के तर्ज पर याद रखा जाएगा, तो नाजरीन ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक और डेवलपमेंट के हवाले से बताएं तो शुक्रिया पाकिस्तान, यानी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे और ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और आला सतह के राबतों के फ़रोग पर उनका तबादला ख्याल भी होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, खैर सगाली का पैगाम लेकर वो आएंगे। इसके अलावा साबिक मुआहिदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां भी जारी हैं। शहराए दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम
आवेजा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि रेड जोन में कायम दफातर में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत भी दे दी गई हैं। तो जहाँ पर यहाँ पाकिस्तान में इतना बड़ा दौरा होने जा रहा है, ईरानी सदर यहाँ पर आने वाले हैं, तो ये बेहतर ही है कि सिक्योरिटी के खदशात और तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेना लाजमी है। इसके अलावा इस दौरे की अगर बात करें तो बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की कारकर्दगी को खूब सराहा जाएगा, जो कि पूरी दुनिया की जानिब से ही सराहा जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया है। सेहूनी वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का इजलास के बाद मुश्तरका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि अपने शहरियों और फौज की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, जबकि अस्करियत पसंदों के ढांचे के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और नाज़रीन, हमने ये देखा है कि इस अमल के आगाज़ से ही, मुज़ाकरात के अमल के आगाज़ से ही इसराइल की भरपूर कोशिश रही है कि इस किसी न किसी तरीके से इन मुज़ाकरात को सैबोटाज किया जाए, MOU पर दस्तखत ना हो और लेबनान पर हमले किसी भी कंडीशन में वो रोकने को तैयार नहीं है। ऐसा क्योंकि इसराइल के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, उनके पास और कोई कार्ड है नहीं। नेतन्याहू जब से आए हैं वो इसी कार्ड पे अवाम के साथ जो है ना वो इंटैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से ये कहा कि जी मेरा तो प्लान ही ग्रेटर इसराइल का है और मैंने देखे कि जी ईरान से जंग की है और फिर उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन की लेबनान में। अब जब उनको जो है वो पीछे होना पड़ रहा है और उन पर प्रेशर आ रहा है, इवन उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस का उन पर प्रेशर आ रहा है कि आपने गलत किया, फिर इधर US से उनकी तरफ प्रेशर आ रहा है कि जी आप पीछे हो जाएं, आप लेबनान से बाहर आएँ, लेबनान में जंगबंदी करें, हिजबुल्लाह के साथ अपने मामला जो है उनको दुरुस्त करें। अब इसी वजह से उस फ्रस्ट्रेशन में ना उनके पास जब करने को कुछ नहीं है तो फिर वो यही करें कि वो सबूताज करने की कोशिश करें सारे प्रोसेस को। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से ये कहा गया कि लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। तो US की कोशिश यही है, उनकी जानिब से बयान भी कल ये सामने आया था कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस मामले को डीरेल होने से बचाया जाए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी लेबनान में और इसराइल में मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि शमाली कोरिया ने अमेरिका और यूरोप और मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को हवा देने का इल्ज़ाम लगा दिया। किम जोंग उन ने जौहरी टेक्नोलॉजी को मज़ीद जदीद बनाने का ऐलान कर दिया, यानी 10,000 टन वज़नी स्ट्रेटेजिक जंगी बहरी जहाज़ के मंसूबे में तेजी लाने की उनकी जानिब से हिदायत बहुत ही अहम किस्म का बयान सामने आया है, जहां पर मुज़ाकरात का अमल बेहतर तरीके से आगे जा रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हम उनसे भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें ये नहीं पता कि अगली ही लम्हे क्या बयान सामने आ जाएगा, क्या जिसे कह सकते हैं कि एस्केलेशन होगी या कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो हम ट्रंप से और किम जोंग उन से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अहम बयान था। तो उन्होंने कहा है, बेसिकली उन्होंने अमेरिका को इस सब का जिम्मेदार ठहराया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम अपनी जंगी सलाहियत में बेहतरीन तरीके से इजाफा करेंगे। बयान एक बहुत ही अलार्मिंग भी कहा जा सकता है, लेकिन हम ये दूसरी जानिब ये भी कह सकते हैं कि कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, दूसरी जानिब मौसम की कुछ बात कर लेते हैं। तो यूरोप में शदीद गर्मी की लहर है। फ्रांस, इटली, स्पेन समेत कई मुल्कों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमें पहले लगता था कि सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद है, लेकिन अब यूरोपीय ममालिक में भी हीट वेव का राज है, एक तरीके से कहा जा सकता है। फ्रांस में 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए हैं। ऐसा ही है, और कई शहरों में गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। माहिरीन ने मजीद कई दिन गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी की शदीद लहर, कई मुल्कों में रेड अलर्ट जारी। फ्रांस का आधे से ज्यादा हिस्सा हीट वेव की जद में। दर्जा हरारत के 40 डिग्री नफसियाती हद उबूर करने का इम्कान। 845 स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां रोक दी गयी। बेल्जियम में दिन के वक्त ट्रेनों की आमद-रफ्त मुअत्तल। स्पेन और इटली में भी धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बरतानिया में गर्मी का रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक सहराए सहारा की गर्म हवाओं के बायस हीट डोम पैदा हो रहा है। मजीद कई दिन गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। तो जनाब, आपने पैकेज में खुद ही देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया गर्मी की लपेट में, और अगर इसको यूं कहा जाए कि ओजोन लेयर की डिप्लेशन की वजह से ये हो रहा है तो ये गलत नहीं है, और इसका क्रेडिट मेरा ख्याल है इंसानों को ही जाता है, क्योंकि हम लोग इस किस्म की चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली जाके ओजोन को डिप्लीट करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो दुआ यही है कि ये मसले जो है ना ये बेहतर तरीके से हल हो सके, और जो हमें दूर दूर तक होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि हल हो जाए। तो जनाब, मेसी जो कि रिकॉर्ड मेकर भी हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर भी हैं, उन्होंने नई तारीख रकम कर दी है। अर्जेंटीना के कप्तान ने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेसी ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ वर्ल्ड कप करियर के 70वें गोल का क्लोजे का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, और मेसी के वर्ल्ड कप गोल्स की तादाद 18 हो गई। और ऐसा ही है, और अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दी है।
तो जी नाजरीन, लियोनेल मेसी के शायकीन तो पूरी दुनिया में ही हैं। उनकी तारीख रकम करने पर कराची के फुटबॉल शायकीन में भी खासा जोशो खरोश पाया जा रहा है। जश्न का समा है, शायकीन कितने पुरजोश हैं, बता रहे हैं शहरियार साजिद। अर्जेंटीना के मेसी ने तारीख रकम कर दी और सबसे ज्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। शायकीन फुटबॉल इस वक्त बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं और मेसी के जो है वो नारे लगा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं मेसी के सबसे ज्यादा गोल बनाने के रिकॉर्ड पर। प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर दुनिया का, वो आपने देख लिया। अपनी टीम को जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, सही ना, इस तरह का प्लेयर आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। इस तरह मेसी ने कर दिखाया भैया, जो करना था उसने करके दिखाया, दुनिया को सबूत कर दिया कि मैं सबसे बड़ा प्लेयर हूँ। ऐसा नहीं होगा कोई प्लेयर ऐसा जो रिकॉर्ड मेसी का तोड़े। इसमें रोनाल्डो का नाम भी नहीं है, उसके तकरीबन पिछले 6 वर्ल्ड कप में 8 गोल हैं। मेसी ने गोल किया और इस वक्त मेसी सबसे स्कोर करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। अर्जेंटीना फाइनल ले जाएंगे, मेसी टॉप स्कोरर हो गए 30 गोल के साथ। मेसी दुनिया की तारीख का एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर है जिसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अर्जेंटीना के मेसी ने कर दिखाया और तारीख रकम कर दी। सबसे ज्यादा गोल बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शायकीन बहुत ज्यादा पुरजोश है और बहुत खुश है और मेसी की यहाँ पर आवाजें लगा रहे हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शहरियार साजिद, समा, कराची। तो जनाब, कराची की इस किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रही होती हैं और मैं बहुत इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि कराची को मिनी ब्राज़ील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा फुटबॉल फैंस पाए जाते हैं। दूसरी जानिब अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। इराक को 3-0 से शिकस्त दे दी है। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए हैं। एम्बापे भी जो है ना वो किसी तारुफ के मोहताज हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे प्लेयर कंसीडर किए जाते हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नॉर्वे ने सेनेगाल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है, जबकि स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए हैं। और मैच के बाद प्लेयर्स ने ढोल के साथ जश्न भी मनाया। अच्छा, अर्लिंग हॉलैंड की ना पर्सनालिटी का टेरर इतना ज़्यादा है, मुझे लगता है कि वो जब खेल रहे होते हैं तो जो सामने वाला प्लेयर होता होगा वो क्या सोचता होगा कि यार आप आ जाएं, आप गोल कर लें, मैं साइड पे हो जाता हूँ। मैं एज अ व्यूअर भी जो विटनेस कर रही होती तो मैं ये सोच रही हूँ यार मतलब क्या टेरर है। तो मजहबी तकरीबात में शिरकत के लिए 300 से ज्यादा भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ननकाना साहब आमद पर मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यात्री पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से बहुत खुश नजर आए हैं। उस्मान संगराना रिपोर्ट कर रहे हैं। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 300 से ज्यादा भारतीय सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। जब हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, एक ना जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग होगा या कुछ, पर यहाँ तो सारा ही अपने जैसा है। इधर इतना सत्कार देते हैं लोग, जितना सिखों का सत्कार इधर करा जाता है दुनिया में कहीं नहीं होता। सिख यात्री कहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ इन्हें बेहद मोहब्बत मिली और इंतजामात मिसाली हैं। दुनिया भर में बसने वाले सिखों को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। रिटायर होने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार जरूर जाऊंगी ननकाना साहब, और अब 3 साल बाद मुझे मौका मिला और मैं आई। यहाँ के मैं बहुत खुश हूँ। वाहिगुरु ने ऐसा सबब बनाया कि हम इस धरती पर आए। हमारा पाकिस्तान सरकार की ओर से बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। सिख यात्री 3 दिन ननकाना साहब में क़याम के दौरान मजहबी रसूमात अदा करेंगे। ननकाना साहब के 7 गुरुद्वारों की यात्रा करेंगे। यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर, सफाई और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह अगले 2 दिन ही हमारे पास हैं, तो बहुत अच्छे अंदाज से, जिस तरह से पहले फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं, उसी तरह से आइंदा भी इंशाल्लाह इसको इंश्योर करेंगे। ननकाना साहब एक बार फिर मजहबी हमांगी, रवादारी, बैनुल मज़ाहिब एहतराम और सिख यात्रियों की अकीदत का मरकज बन गया। उस्मान संदराना, समा, ननकाना साहब। दूसरी जानिब अलीपुर को सैलाबी पानी से महफूज रखने के लिए सुपर बंद की तामीर और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता बरस इसी नामुकम्मल बंद की वजह से सैलाब ने अलीपुर में तबाही मचाई थी। बिल्कुल, और महकमा आपाशी की जानिब से हैवी मशीनरी लगाकर 3.5 किलोमीटर के नामुकम्मल हिस्से को मुमकिन सैलाब से पहले ही मुकम्मल किया जाएगा। मजीद जानते हैं मलिक साजिद से। जी साजिद, बताइए। जी बिल्कुल, तहसील अलीपुर का फ्लड बंद जो 2025 में नामुकम्मल होने की वजह से अलीपुर का 80 से 90% इलाके डूब गए थे, आज उसको पूरी करने के लिए महकमा इरिगेशन की भारी मशीनरी और सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। मेरे साथ एक्शन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये चंद्रभान फ्लड बंद जो कि हेडपंडर से लेकर सरकी तक उसके दरमियान एक 3.5 किलोमीटर का एक मिसिंग गैप था कई दहाइयों से,
और जिसकी वजह से 2025 के सैलाब में अलीपुर तहसील काफ़ी मुतासर हुई है। इस जो मिसिंग गैप को बनाने के लिए आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ काम शुरू कर दिया है। महकमा इरिगेशन का यही कहना है कि मुमकिन जो 2026 का सैलाब है उससे पहले इस टुकड़े को मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो तहसील अलीपुर के इलाके हैं उसे महफूज रखा जा सके सैलाब से। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे आपको बताएं कि लिया की बस्ती करंजाल में दरियाए सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। 200 घर पर आबादी बड़ी बस्ती खाली कराई जा रही है, जबकि इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी भी कर रहे हैं। वहाँ का मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया के मौजा सुमरा नशेब में मौजूद हूँ। ये मौजा सुमरा नशेब की बस्ती कंजाल है, जहाँ पर इस वक्त दरिया सिंध का जो ज़मीनी कटाव है वो खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं इस वक्त एक ऐसी बस्ती में मौजूद हूँ जिसे बस्ती कंजाल कहते हैं, और ये बस्ती जो है इस वक्त खाली की जा रही है। यहाँ पर जो इलाका मकीन आबाद थे वो यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह पे नकल मकानी कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है सीएम पंजाब से इधर से कोई ना कोई बंदोबस्त करें हमारे लिए, कोई सिपर बंद अगर जो है सिपर बंद दें। अब ये इस बस्ती को खाली कराया जा रहा है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसे हाल ही में तामीर किया गया। अब इस बिल्डिंग का जो मलबा है वो उखाड़ा जा रहा है और महफूज मकामात पर ये जो इलाका मकीन है ये नकल मकानी कर रहे हैं। जी ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। स्वात के मरकजी शहर मैंगोरा में 2025 की सैलाबी तबाहकारियों के बाद मैंगोरा नदी की सफाई का काम भी अब शुरू कर दिया गया। तो इसी बारे में तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। शहाब, बताइएगा। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ मिंगोरा की उस नदी में जहाँ पर 25 अगस्त 2025 को सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचाई थी और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नुकसानात हुए थे। इसके बाद हुकूमत ने अब इस नदी की सफाई का अमल शुरू कर दिया है। मेरे अक़ब में आप देख रही हैं कि मशीनरी लगी हुई है और 91 करोड़ रुपए की लागत से इस नदी की सफाई की जा रही है। फिर इसके बाद दोनों तरफ पुश्ती भी तामीर किए जाएंगे ताकि इस नदी की सफाई हो और इसको अब मुकम्मल तौर पर साफ किया जा सके, ताकि शदीद बारिशों के दौरान इसमें पानी का बहाव वो कम से कम हो और नुकसानात कम से कम हो। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में सफाई का ये सिलसिला जारी है। ताहम शहरियों का ये कहना है कि दरिया स्वात और इसी तरह नदी नालों पर जो तजावुज़ात बनाए गए हैं, अगर इन तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए, इन तजावुज़ात को हटाया जाए तो सैलाबी सूरत हाल में कम से कम नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में बिला आखिर सेफ सिटी मंसूबा शुरू कर दिया गया है। सखर और रोहड़ी में जदीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे जमील मुगल से, जो इस वक्त एसएसपी सखर अजहर मुगल के साथ कंट्रोल रूम में ही मौजूद हैं। जी जमील, ओवर टू यू। जी, सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में बिलाखिर सेफ सिटी मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। सखर और रोहड़ी में जदीद किस्म के जो हैं सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कितने कैमरे लगाए गए हैं, ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा, बात करते हैं एसएसपी अजहर मुगल से जो मेरे साथ मौजूद हैं। ये हमारे पास रोहड़ी में इस टाइम 50 कैमरे लग चुके हैं। टोटल कैमरों की तादाद रोहड़ी में 86 होगी। इसके अलावा सखर शहर में हमारे जो कैमरे हैं उनकी तादाद 160 होगी। पन्नू आकिल में भी तकरीबन 80 कैमरे लगेंगे। मुहर्रम उल हराम के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन्स में हमने जो मेन मरकज़ी जुलूस है नौ ढाल का जो ताज़िया निकलता है रोहड़ी शहर में, जिसमें लाखों लोग जो है शिरकत करते हैं, उसके रूट को कवर किया है, इमाम बारगाह को कवर किया है, करबला को कवर किया है, करबला मैदान को और तमाम। तो उस हवाले से हमें ये नाइट विजन जो कि कैमरे हैं हेल्प करेंगे जुलूस को मॉनिटर करने के अंदर। इसके अलावा वायरलेस सिस्टम यहाँ पे लगाए गए हैं कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर देखते हैं तो फौरी तौर पे कम्युनिकेशन की जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला इस टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा होगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद उमरकोट में मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर शहरियों से सरकारी नरखों से ज़ायद कीमत वसूल किए जाने की शिकायत सामने आ रही है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा उत्तम संग्रासी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमरकोट के शहर के वस्त में, जहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त जो है उमरकोट के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर 308 रुपये, 310 रुपये और 309 रुपये, 307 रुपये के हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप के ऊपर 317 रुपये से लेकर 322 रुपये तक जो है डीजल बेचा जा रहा है। इसके ऊपर जो आवाम का जो है सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। आवाम का कहना है कि हमें जो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया उसके ऊपर जो हमें यहाँ पर पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि फिलफौर इसके ऊपर ज़िला इंतज़ामिया और वफाकी गवर्नमेंट जो है फिलफौर एक्शन ले। सवाल जब हमारी पेट्रोल पंप के मालिकान और मैनेजर हजरात उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमें यहाँ से
कराची से और मुख्तलिफ इलाकों से हम डीजल और पेट्रोल यहाँ पर लेके आते हैं, जिसकी गाड़ियों का जो किराए की मद में हमें कुछ ज़्यादा महंगा पड़ता है। इसके पास यहाँ पर जो महंगे दामों में पेट्रोल डीजल बेचने पे मजबूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो हॉकी प्रो लीग में आज पाकिस्तान भारत से मुकाबला करेगा। लंदन में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों टीमें 26 जून को भी आमने सामने आएंगी। प्रो लीग में पाकिस्तान टीम अब तक 12 के 12 मैच हार चुकी है अनफॉर्चुनेटली। दूसरी जानिब अमेरिका की वीनस विलियम्स ग्रासकोट टेनिस में वापसी पर पहला मैच भी हार गईं। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि बडोमबर्ग टेनिस में रोमानिया की टेनिस प्लेयर ने वीनस विलियम्स को हराकर इवेंट से छुट्टी करा दी। और यहाँ पर अहम खबर आपको देते हैं कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सालिसी पर शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई और आला सतह के राबतों के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा और साबिक मुआहदों पर पेशरफ्त और अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। इस्लामाबाद में इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। शाहराह दस्तूर पर दोनों ममालिक के परचम आवेजा कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद कर दिया गया है, जबकि रेड जोन में कायम दफातर में काम करने वालों को वर्क फ्रॉम होम की हिदायत भी दे दी गई हैं। तो इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा टिका खान सानी से। जी टिका खान सानी, बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रेड जोन में मौजूद हूँ, डी चौक में। ख़ास तौर पे डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो ईरानी सदर हैं, उनकी आमद के हवाले से यहाँ जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स नज़र आ रहे हैं और ईरान और पाकिस्तान के परचम जो है वो एक साथ अवेजा नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पे मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आमद के हवाले से रास्ते के तमाम रूट्स जो हैं उनको इसी तरह सजाया गया है। आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान यहाँ पहुँचेंगे और उनका रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और उसके बाद आमद के बाद उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उसके साथ साथ सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर अहम शख्सियात की मुलाकात होगी। उनके हमरा आला वफ़द भी मौजूद होगा, जिस पे उनके वज़रा और इसके साथ साथ हाई ऑफिशियल्स भी वफ़द का हिस्सा होंगे। इस दौरान जो मुलाकात होगी, राब्ते होंगे, उसमें ट्रेड के ऊपर बात होगी ख़ास तौर पे और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी। इस्लामाबाद में उनकी आमद के हवाले से इज़हार तशक्कुर है पूरी ईरानी कौम का और ईरानी सदर का, जो पाकिस्तान की सफारती कोशिशें थी और सालिसी पाकिस्तान ने करवाई अमेरिका और ईरान के दरमियान और इस्लामाबाद माहिदे तक पेशरफ्त हुई और अब मुज़ाकरात का अमल शुरू हो रहा है। बड़ा एतमाद की फ़ज़ा है दोनों ममालिक में और भरपूर क़यादत की सतह पर एतमाद नज़र आ रहा है। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हों, अगर वो वहाँ जाते हैं तो इसी तरह इस्तकबाल किया जाता है और इस तरह अगर ईरानी वफूद यहाँ आते हैं तो इसी तरह उनका शानदार इस्तकबाल किया जाता है। आज भी उसी सिलसिले की अहम कड़ी है, चूँकि सदर डॉक्टर पज़ेश्कियान अपने इस मनसब के दौरान पाकिस्तान का ये दूसरा सरकारी दौरा कर रहे हैं। एक रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। अगर रेड जोन की बात करते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो तमाम हाइकिंग ट्रेल हैं वो तमाम बंद कर दिए गए हैं, 3, 4, 5 और 2। इसके साथ साथ जो रूट्स हैं ख़ास तौर पे कुराल चौक से लेके 0 पॉइंट तक, त्रामड़ी चौक तक और इसके साथ साथ दीगर जो मुतबादल रूट्स हैं वो दिए गए हैं और ट्रैफिक का बाकायदा एक प्लान है। हैवी ट्रैफिक जो है उसको दाखिला उसका ममनू किया गया है। रेड जोन के अंदर जो तमाम मिनिस्ट्रीज़ हैं जुज़वी तौर पर वो बंद हैं। ज़रूरी मिनिस्ट्रीज़ जो हैं उनके स्टाफ को कहा गया कि वो ज़रूर आएँ, बाकी तमाम वर्क फ्राम होम करें। तो यूँ एक अहम दौरा है ख़ास तौर पे इस्लामाबाद माहिदे के बाद ईरानी सदर का पाकिस्तान आना। इससे तिजारत का रास्ता खुलेगा, एनर्जी सेक्टर में दोनों ममालिक का ताउन होगा, पीपल टू पीपल एक्सचेंज के हवाले से पेशरफ्त होगी और इसके साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर जो मामला हैं दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई और बैन अल-अक़वामी जो सूरत हाल है उस तनाजुर में दोनों ममालिक की क़यादत यहाँ बैठेगी और ये भरपूर इस्तकबाल के साथ साथ
इजहार तशक्कुर भी होगा ईरान का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान के उन तमाम किरदारों का, ख़ास तौर पे वज़ारत ख़ारजा हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सैयद मोहसिन नकवी हो, इसके साथ साथ सैयद आसिम मुनीर तो और फील्ड मार्शल और साथ प्राइम मिनिस्टर, इन तमाम का इजहार तशक्कुर होगा और सदर मुमलिकत से भी मुलाकात होगी इस दौरे के दौरान। जी बिल्कुल अहम नौयत का ये दौरा है। टीका, अच्छा टीका, ये भी बताएगा कि टाइमिंग के हवाले से क्या बताया जा रहा है, कितने बजे तक उनका पहुंचना एक्सपेक्टेड है? जी अभी तक चूँकि सिक्योरिटी प्लान के तहत अभी तक उनकी अराइवल का एग्जैक्टली टाइम तो नहीं बताया गया, लेकिन इवनिंग में आफ्टरनून जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी आमद होगी। चूँकि इस वक्त तक तो सिक्योरिटी के रेड जोन में इंतजाम सख्त हैं, ताहम उनका एक रोज़ा जो सरकारी दौरा है उस दौरान वो किसी वक्त भी उनकी आमद मुतवक्को है 12 बजे के बाद, और उनका बाकायदा रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो दावत है ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को दी थी, और ख़ास तौर पे इस माहदे के दौरान भी उनका मुसलसल ईरानी सदर से रब्ता रहा। और जब इस बीच में फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हुई और दोनों ममालिक की जानिब से सूरत हाल थोड़ी सी दूसरा रुख इख्तियार करने लगी, तो डॉक्टर पज़ेश्कियान की मुदाखलत के बाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की इन्वॉल्वमेंट के बाद फिर दोबारा दोनों ममालिक मुज़ाकरात की टेबल पे आए। और आज दुनिया को अमन का गहवारा बनाने में इन दोनों ममालिक, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो अहम किरदार है, इस सिलसिले में उनका दौरा है और आके बाकायदा तौर पे यहाँ इजहार तशक्कुर करेंगे। पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है वो तो ईरान की पहले ही है, मजहबी वाबस्तगी हो, इसके साथ साथ ज़ायरीन का वहाँ आना, मुक़द्दस मकामात, इसके साथ साथ जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी खुलने जा रही है। और ख़ास तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस कम हुई हैं ईरान के ऊपर, और उसके बाद उस हवाले से पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत की, ट्रेड ख़ास तौर पे करने की, उसके आज रास्ते खुलेंगे। आपने हुरमुज़ के खुलने के बाद और उसके जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म होने के बाद अब पाकिस्तान सबसे नियरेस्ट फ्रेंड है और सबसे करीब बॉर्डर लगता है। तो ईरान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ना सिर्फ बायलैटरल हैं बल्कि साथ साथ ट्रेड, एनर्जी और इसके साथ साथ गैस लाइन, पाइपलाइन की राह हमवार होगी, पेट्रोल की ऐसा ही है। टिका खान सानी, आपने बहुत ही तफसीलन आगाह किया है और सारा दिन आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, खबर वही अंदाज नया में कुछ मसाइल की बात कर लेते हैं। शदीद गर्मी के बाद कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जबकि रावलपिंडी में पानी की कमी दूर करने के लिए जारी मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने का फैसला भी कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक चहान डैम आइंदा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि दडोचा डैम की फिजिबिलिटी पर काम जारी है। शहर में 30 साल पुरानी वाटर सप्लाई पाइपलाइंस को भी तब्दील किया जा रहा है। यासिर हकीम की रिपोर्ट देखिए। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से रावलपिंडी में पानी की किल्लत में भी इजाफा। वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी को वाटर सप्लाई सिस्टम को बेहतर बनाने का ख्याल आ गया। रावल और खानपुर डैम से वाटर सप्लाई की निस्फ सदी पुरानी लाइंस को तब्दील करने का काम तेज कर दिया। 46 मिलियन का प्रोजेक्ट है पिंडी के लिए। हम 200 mm से लेके 1400 mm की जो पाइपलाइंस हैं वो हम तब्दील कर रहे हैं, जो कि लाइंस आज से 20, 25, 30 साल पुरानी है। मकसद ये है कि जो हमारे पास लीकेजेस हैं उन्हें कंट्रोल करें। वासा हुकाम के मुताबिक शहर में पानी की योमिया कमी पूरी करने के लिए मुतबादल जराए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नए डैम्स की तामीर भी तेजी से जारी है। 12 ट्यूबवेल भी लग रहे हैं अलॉन्ग द एक्सप्रेस वे, जिससे हमारे पास एक सोर्स डेवलपमेंट होगी। जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास जो है वो चौहान डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह जो है मजीद 1-2 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा हम डडूचा डैम की फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। शहर में पानी की कमी पूरी करने के लिए वाटर टैंक और ट्यूब वेल्स के जरिए भी सप्लाई दी जाती है। गर्मी में पानी की बढ़ती हुई तलब के बायस सारे शहर की नजरें इस मंसूबे पर हैं। ताहम वासा हुकाम का कहना है कि ये मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा और शहर में किल्लत आब का मसला हल हो जाएगा। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ यासिर हकीम, समा, रावलपिंडी। चलिए जी, यासिर हकीम की रिपोर्ट हमने देखी है। रुक कर लेते हैं कराची का। कराची के दीगर बरसाती नालों की तरह हिजरत कॉलोनी का बरसाती नाला भी साफ नहीं किया जा सका। इलाका मकीन मॉनसून के हवाले से इस बार भी बहुत परेशान है और अंदेशे का शिकार हैं, क्योंकि बारिश के बाद नाले का पानी आबादी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी बारे में मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए कि वहाँ पर लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिजरत कॉलोनी के उस नाले पे जिसकी सफाई अभी तक की नहीं जा सकी।
हमारे कैमरामैन आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा नाला कचरे से भरा हुआ है और बहुत अरसा हो चुका है इसकी सफाई नहीं हुई। ये वो खूनी नाला है कि जिसमें गिरकर कई अफराद और कई बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हिफाजती दीवार इसकी बनाई गई थी जो टूट चुकी है, और ये वो पुलिया है जो हिजरत कॉलोनी और सुल्तानाबाद को आपस में लिंक करती है। और ये नाला तंग हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इस नाले की सफाई कब होगी। लोगों का ये कहना है कि हर बारिश में उनके इलाके में घरों में पानी दाखिल हो जाता है, लोगों का सामान भी ख़राब होता है और आए दिन यहाँ पर हादसात होते रहते हैं। लोगों का मुतालबा है कि सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस नाले की सफाई करवाए, इस नाले को प्रॉपर तौर पर इसकी हिफाजती दीवार तामीर की जाए ताकि आइंदा किसी हादसे से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और एक अच्छी खबर भी शामिल कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे में अहम इकदाम सामने आया है। खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर में मुफ्त गुर्दा ट्रांसप्लांट सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया है और पहला कामयाब मुफ्त गुर्दा ट्रांसप्लांट भी मुकम्मल कर लिया गया है। देखते हैं पेशावर से इरफान मूसाज़ई की रिपोर्ट। खैबर टीचिंग अस्पताल में शुरू की गई मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट सर्विस से अब सूबे के मुस्तहिक मरीजों को महंगे इलाज के लिए दूसरे शहरों या निजी मराकज का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम आवाम को जदीद और मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी की जानिब एक अहम कदम है। आज खैबर टीचिंग हॉस्पिटल की तारीख में एक बहुत अहम और खुशी का दिन है। मुझे इस बात पर बहुत फ़ख्र है कि 14 जून 2026 को पहला कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन अंजाम दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पहला कामयाब ट्रांसप्लांट 2 भाइयों के दरमियान अंजाम दिया गया, जहां एक भाई ने अपना गुर्दा अतिया करके दूसरे भाई को नई जिंदगी दी। माहिर डॉक्टरों की टीम ने जदीद तिबी सहूलियात की मदद से ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया, जबकि मरीज और डोनर दोनों सेहतयाब हैं। ये सर्जरी जो है हिस्टोरिक इस लिहाज से है कि ये खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में पहला किडनी ट्रांसप्लांट है। हम इंशाल्लाह जब हमारा एक डेडिकेटेड फ्लोर हमें मिल जाएगा ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें हम न सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट्स करेंगे बल्कि उसमें इंशाल्लाह लिवर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स भी शुरू करेंगे। डॉक्टरों के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलियात का आगाज सूबे के हजारों मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित होगा, जहां उन्हें अपने ही सूबे में जदीद और महफूज इलाज मुयसर आ सकेगा। इरफान मूसाज़ई, समा, पेशावर। चलें जी, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी और दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है और अच्छी खबर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बारिश भी हो और जो है ना मौसम मज़ीद अच्छा हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा कि मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, लेकिन शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इस वक्त हल्की हल्की हवाएँ चल रही हैं और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% से ज़ायद है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस शहर का मौसम खुशगवार हुआ था, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही पाकिस्तान की हसीन वादी मालम जब्बा में इन दिनों सयाहों का रश देखने में आ रहा है, जहां लोग खुशगवार मौसम, दिलकश नज़ारों और कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। स्वात की खूबसूरत वादी मालम जब्बा इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सरसब्ज पहाड़, बादलों से ढकी चोटियां और खुशगवार मौसम यहाँ आने वालों को मशहूर कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट की सैर, घुड़सवारी का लुत्फ या कुदरती मनाजिर के दरमियान यादगार लम्हात मालम जब्बा आने वाले सयाह भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे तो वेदर बहुत प्लेजेंट है, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सीनरी बहुत अच्छी है। इट्स रियली लाइक स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। इस जैसा खूबसूरत जो सीनरी वाइज है और इससे पहले इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा कहीं भी नॉर्दर्न एरिया में। तो ऊपर से मौसम बहुत खूबसूरत है, कभी बादल आ रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी धूप निकल रही है, तो अमेजिंग है। कुदरती हुस्न के साथ साथ मकामी सकाफत भी सयाहों को अपनी जानिब खींच रही है। रुबाब की सुरीली धुनें और रिवायती रक्स सयाहों की दिलचस्पी में मजीद इजाफा कर रहे हैं।
सयाह न सिर्फ कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं बल्कि इन हसीन लम्हात को अपने कैमरों में महफूज करना भी नहीं भूलते। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वाद। ननकाना साहिब में दरियाए रावी हेड बलोकी के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मशकें की गई हैं। रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत और दीगर इदारों ने इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की अमली मशक का मुजाहिरा किया। उस्मान सुंदराना की रिपोर्ट देखिए। दरियाए रावी में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हेड बल्लोकी पर फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद, मुतासरीन की महफूज मुंतकिली, तिब्बी इमदाद, खुराक की फराहमी और माल मवेशी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात का अमली मुजाहिरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट ननकाना में हमारा 75 किलोमीटर के एरिया रिवराइन है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक तो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। 16 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एडवांस फ्लड कैंप एस्टेब्लिश होते हैं और वहाँ के मकामी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए फ्लड की सूरत में मदद दरकार होती है। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरियाए रावी के किनारे वाक़े 100 से ज़ायद आबादियाँ हसास हैं। ननकाना साहब की तारीख के अंदर पहली मरतबा डीसिल्टिंग की इतनी बड़ी एक्टिविटी की गई है तहसील ननकाना के अंदर। हमारे 17 महकमे हाई अलर्ट हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक दरिया रावी के अतराफ 75 किलोमीटर की हदूद में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उस्मान संदराना, समा, ननकाना साहब। दूसरी जानिब कोहाट में पाकिस्तान बैतुल माल स्वीट होम के बच्चों के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग, रेस्क्यू 112 के माहिरीन ने बच्चों को हंगामी हालात में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अमली तरबियत भी फराहम की। तफसील जानते हैं बासित गिलानी की रिपोर्ट में। कोहाट में पाकिस्तान बैतुल माल स्वीट होम के यतीम बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस के ज़ेरे तमाम फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। तरबीती प्रोग्राम का मकसद बच्चों में इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुतल्लिक शऊर उजागर करना और उन्हें हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर मदद फराहम करने के काबिल बनाना था। इस ट्रेनिंग देने का स्टूडेंट को मकसद ये था कि जो बेसिक एक लाइफ स्किल है वो यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए, जो इनको आगे आने वाली लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस से निपटने में उनको मदद दे। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स ने बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की अमली तरबियत दी। जख्मों पर पट्टी बांधने, खून बहने की सूरत में फौरी मदद और दीगर हंगामी हालात से निपटने के लिए बुनियादी उसूल सिखाए गए। बच्चों ने तरबियती सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। तो यहाँ पे आज आने का मकसद था कि हम यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं उसको फर्स्ट एड के हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस दे, 112 के हवाले से कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों ने क्या करना है। यहाँ पे हमने जितनी भी लाइफ सेविंग स्किल है, फॉर एग्जांपल CPR आपने कैसे करना होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल, फ्रैक्चर हो गया, स्नैक बाइट हो गया, अगर किसी इंसान को मतलब बेहोश हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए तो आपने क्या करना है। माहिरीन के मुताबिक फर्स्ट एड से मुतालिक बुनियादी तरबियत हर फर्द के लिए ज़रूरी है। स्वीट होम के बच्चों के लिए ये तरबियत मुस्तकबिल में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा कर सकती है। बासित गिलानी, समा, कोहाट। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। झंग में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात जारी हैं। अरशद खान की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस अयाम में हजरत सुल्तान बाहू के दरबार पर हजारों ज़ायरीन की हाजिरी। यकम से 10 मुहर्रम तक जारी रहने वाली तकरीबात में शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद किया जाता है। बहुत सरकार का लंगर अता करते हैं, बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह, देखने को बहुत अच्छा माहौल मिलता है, ठीक है ना, बहुत पुरसकून होता है इस जगह पे। तकरीबात में रूहानी महफिल और जिक्र की नशिस्तें भी मुनक़िद की जाती हैं। ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त हिफाजती इक़दामात। हम सालों साल आते हैं, हम जो हकीकतमंद हैं, हर साल आते हैं, अपने काफिले के साथ आते हैं। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी तालीमात के जरिए दीन इस्लाम की इशाअत और इंसानियत की रहनुमाई में नुमाया किरदार अदा किया। आज भी मुल्क भर से अकीदतमंद उनके दरबार पर हाजिर होकर रूहानी सुकून हासिल करते और शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। मुल्तान में मुहर्रमुल हराम में सबीलों का एहतमाम किया जाता है, वहीं सदियों पुरानी मटका सबील की रिवायत आज भी जिंदा है। रिपोर्ट करें मोहसिन अली। मिट्टी से बने मटकों में ठंडा पानी मुहर्रमुल हराम में प्यास बुझाने के लिए। मुल्तान में 500 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी मटकों वाली सबील शोहदाए करबला की याद दिलाती है। बुजुर्गों ने इस सिलसिले को शुरू किया था और आज तक ये हम लेके चले आ रहे हैं।
ये करबला वालों की प्यास की याद के सिलसिले में शुरू की गई थी। सबील पर बच्चे बड़ों का रश लगा रहता है। लोग गर्मी की शिद्दत और प्यास बुझाने के लिए सबील से मुस्तफीद होते हैं। मुल्तान में सदियों सालों से जो है ये सबील लगाई जाती है और ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में सबील लगाई जाती है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये मिट्टी के बर्तनों में जो है पानी सर्व किया जाता है। हम भी यहाँ से पानी पीने के लिए आते हैं और हमें बड़ा सुकून मिलता है। शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार करने के लिए सबील का सिलसिला दिन भर जारी रहता है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। इन विमेंस T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम को पहली फतह की तलाश है। आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। मैच रात 10:30 बजे शेड्यूल है, जो कि महज एक रस्मी कार्रवाई होगा। कौमी विमेंस टीम मुसलसल 3 शिकस्तों के बाद सेमीफाइनल की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान विमेंस टीम को बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब आपको मिलवाते हैं फैसलाबाद की नहम जमात की होनहार तालिबा से, जिसने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। मिनाहिल फातिमा ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर मेहनत, लगन और अज़्म की नई मिसाल कायम की है। रिदा सिंधु की ये रिपोर्ट देखिए। रोज़ाना बाइक पर घर से निकलने वाली मिनाहिल फातिमा के ख्वाब भी बड़े हैं और हौसले भी। खेल के मैदान में अपनी अलग शनाख्त बनाने वाली इस तालिबा ने सख्त मेहनत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना रखा है। मंजिल तक पहुंचने का सफ़र आसान ना था। मिनाहिल ने घंटों ट्रैक पर पसीना बहाया और अपनी रफ्तार और सलाहियतों को मज़ीद निखारा। मिनाहिल नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक पहुंची। 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। दिन रात मेहनत की। मेरे लिए बहुत मुश्किल था ये सफ़र। मेरे कोचेस ने, टीचर्स ने, वालिदैन ने, बहन भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मिनाहिल की कामयाबी पर वालिदैन और असातिज़ा भी खुश हैं। इनके वालिद साहब रिक्शा चलाते हैं और देखें इन हालात में रह के स्पोर्ट्स आपने अडॉप्ट करना, मैं इनके पेरेंट्स को बहुत सलूट पेश करती हूँ। अब इसकी नज़रें बैनुल अक़वामी मुकाबलों में नुमाइंदगी पर हैं। एथलेटिक्स में कुछ कर दिखाने का यही जज्बा जहां मिनाहिल को कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है, वहीं ये दूसरी लड़कियों के लिए हिम्मत की रोशन मिसाल भी है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा संधू, समा, फैसलाबाद। हेड्स ऑफ टू यू मिनाहिल। इतनी कम एज में सोबिया इतना अच्छा परफॉर्म करना और फिर जीतना, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। बहुत खुशी होती है ऐसी बच्चियों को देखकर, ऐसी लड़कियों को देखकर जो अपने लिए जो है ना वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और शफक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये दीगर लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है और हमें खुशी होती है देख के जो हमारा मुस्तकबिल है वो इन ख़वातीन के हाथों में है। तो जी जनाब, आगे बढ़ते हैं। ज़हनी सेहत के मसाइल आज दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ है। उन पर बात करना अब भी कई माशरों में एक चैलेंज समझा जाता है, लेकिन क्वेटा में इसी खामोश मौजू को रंगों और तख्लीकी इजहार के जरिए उजागर करने के लिए पेंटिंग नुमाइश का इनकाद किया गया। शुरका ने फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा। तफसील नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा की शाल आर्ट गैलरी में मुनक्किदा नुमाइश में पेश किए गए फनपारे महज तस्वीर नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, एहसासात और ज़हनी कैफियत की अक्कास हैं। रंगों और लकीरों के जरिए फनकारों ने ज़हनी दबाव, तन्हाई, उम्मीद, खुद एतमादी और अंदरूनी कश्मकश जैसे मौज़ूआत को मुनफरिद अंदाज में पेश किया। हीलिंग जर्नी है, उसके ऊपर मैंने काम किया है कि कैसे इंसान जो है हील करता है, क्योंकि हीलिंग जर्नी की भी कोई शक्ल सूरत नहीं होती है। तो मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई स्ट्रोक्स में काम किया है। स्ट्रोक्स में कुछ ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जैसे येलो इज़ अ हैप्पी कलर। नुमाइश का मकसद सिर्फ फन की नुमाइश नहीं बल्कि ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना भी है। मैंने अपनी पेंटिंग में एक जर्मन फ़िलासफ़र फ्रेड नीचे के कॉन्सेप्ट, द ओवरमैन कॉन्सेप्ट या द सुपरमैन कॉन्सेप्ट पे काम किया है, जो हमें ये बताता है कि मेंटल वेल बीइंग होना हमारे हाथ में है। हम ही इसे हैंडल कर सकते हैं, हमें इसे समझ सकते हैं। नुमाइश में रखी गई तख्लीकात ने आर्ट से मोहब्बत करने वाले अफराद की भरपूर तवज्जो हासिल की। मेंटल वेल बीइंग के लिए उन्होंने ये आर्ट कंपटीशन का इनेकाद किया था, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी से मोटिवेशन हासिल हुई कि जो ख़यालात आते हैं ख़वातीन के जहन में, इश्यूज़ आते हैं, उनको उन्होंने आर्ट के ज़रिए जो है वो मोटिवेट करने की कोशिश की, जो कि काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव था। मुंतज़मीन कहते हैं ज़हनी सेहत के मौजू पर 5 रोज़ा तरबेती सेशन भी मुनक्किद किया गया।
جس میں خصوصی افراد سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو جو کمیونٹی لیول کے اوپر اس کی ایکسیپٹنس ہے وہ اس طرح ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو آرٹ کے تھرو جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ایک سافٹ سا اور لائٹ سا میسج کمیونٹیز کے اندر جاتا ہے۔ خصوصی افراد کا کہنا ہے کہ ان سیشنز نے نہ صرف ان کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب کیے بلکہ انہیں روزمرہ زندگی کے مسائل اور چیلنجز سے بہتر انداز میں نمٹنے میں مدد بھی فراہم کی۔ شرکاء کہتے ہیں اس نوعیت کی مثبت سرگرمیاں ذہنی صحت جیسے اہم مگر نظر انداز کیے جانے والے مسئلے کو سمجھنے، اس پر گفتگو کو فروغ دینے اور معاشرے میں بہتر رویوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کیمرامین جنید اکبر کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ جناب بہت اچھی رپورٹ تھی نور العارفین کی، اور میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح باڈی کے باقی آرگنز جو ہیں وہ بیمار ہو سکتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اسی طرح سے جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ بھی ایک آرگن ہے اور وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو اٹس اوکے اگر آپ مینٹلی ال ہیں یا آپ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اٹس اوکے، یہ چیزیں نارمل ہیں، ان چیزوں کو نارملائز کریں اور ان کا علاج ہونا بھی بہت نارمل ہے۔ اگر آپ کو یہ ہے تو آپ جائیں، آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو خدارا ایک تو اس چیز کو سمجھیں کہ جو آپ کی دماغی صحت ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دوسرا جو بندہ اس چیز سے گزر رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کرے، نہ کہ آپ اس کو یہ فیل کریں کہ وہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر آپ تبھی ٹھیک ہوں گے جب آپ ذہنی طور پر ٹھیک ہوں گے۔ بالکل ایسے یہ صوبی، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی، کل ملاقات ہوگی آپ سے خبر وہی انداز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔